أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خصوص النبي محمد مصطفى وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين قال تبارك وتعالى في قرآن مجيد وفرقان الحميد وهو قوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم من يطيع الرسول فقد اطاع اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین گرامی، ایک مرتبہ پھر میں آپ لوگوں کی خدمت میں پیش ہوا ہوں کہ آج کا میرا موضوع ہے کہ مجتہدین کے ماخذ کیا ہیں، وہ مجتہدین فتویٰ کس طرح دیتے ہیں، اور ان کا یہ جو ساز و سامان ہے کیا استعمال کرتے ہیں فتویٰ دینے کے لیے، یہ کہاں سے فتویٰ لاتے ہیں۔ تو آج اس ویڈیو کے ذریعے انشاءاللہ میں ان کی کتابوں کے ذریعے جو ان کے عقائد ہیں وہ کس طرح مجتہد بنتے ہیں اور وہ کس طرح فتویٰ دیتے ہیں، انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے ساتھ اس ویڈیو میں ثابت کر کے دکھاؤں گا۔ قرآن اور احادیث کے لحاظ سے، ائمہ معصومین علیہ السلام کے لحاظ سے، کہ یہ جو مجتہدین ہیں انہوں نے اپنے نظریے اور عقیدے کے مطابق قرآن اور حدیث سے ہٹ کر رائے، قیاس، اجتہاد، استنباط کا راستہ اختیار کر لیا، اور انہوں نے کوسوں دور قرآن اور احادیث کو چھوڑ دیا۔ یہ مجتہد فقط رائے، قیاس، اجتہاد اور ظن استعمال کرتے ہیں، اور ان نظریوں کے بنیاد پر یہ فتویٰ دیتے ہیں۔ ان کی فتویٰ قرآن، احادیث معصوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوسوں دور ہے، اور ان سے کوئی بھی قرآن اور احادیث سے مجتہد کی فتویٰ کا کوئی بھی دار و مدار نہیں ہے، کوئی بھی میل جول نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے کچھ کتابوں کے حوالے میں آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کروں کہ مجتہدین کس طرح فتویٰ دیتے ہیں اور مجتہد کس طرح بنتا ہے، کیا مجتہد میں خاصیت ہونی چاہیے، اور وہ کون سا ملکہ ہے جو مجتہد میں ہونا چاہیے، جس کی بنیاد پر مجتہد مقام فائز پر فتویٰ دینے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ تو دوستو، سب سے پہلے مجتہد کی فتویٰ کا دار و مدار رائے، قیاس، اجتہاد، استنباط، ظن پہ ہوتا ہے، اور یہ حوالہ فلسفہ امامت محمد مہدی الآصفی، یہ کتاب میرے ہاتھوں میں موجود ہے، فلسفہ امامت۔ اس کے صفحہ نمبر 17 پر یہ لکھتے ہیں کہ مجتہد کا دار و مدار فتویٰ میں رائے، قیاس، اجتہاد اور ظن ہوتا ہے، اس کے دلیل پہ یہ استنباط کرتا ہے اور فتویٰ دیتا ہے۔ اس کے بعد اصل و اصول شیعہ علامہ شیخ آل کاشف الغطا، یہ کتاب اصل و اصول شیعہ، یہ مجتہد صاحب کہتے ہیں کہ مجتہد یعنی صاحب رائے، یہ علامہ آل کاشف الغطا، یہ جو مجتہدوں کے بھی دادے ہیں، یہ دادا ہے مجتہدوں کا، تو یہ اپنی کتاب اصل شیعہ میں لکھتے ہیں کہ مجتہد یعنی صاحب رائے، یعنی مجتہد اپنی رائے دیتا ہے،
और उसके अलावा ये दूसरी किताब काशिफुल गत्ता की सीरत पे, ये अजीम शख्सियत नंबर हिस्सा 5, ये ईरान की किताब मेरे हाथों में है। अंसारियान पब्लिशर अंसाकुम ने छापी है। इस किताब के अंदर ये लिखने वाले मौलवी लिखते हैं कि मुजतहिद यानी कानून बनाने वाला, मुजतहिद यानी कानून बनाने वाला। दोस्तों, ये जो मुजतहिद के 4 माखज़ हैं जो मैंने आप लोगों को बताए, कुरान व सुन्नत, इज्मा, क़ियास, कुरान और हदीस इनका कोई ताल्लुक नहीं है। ये शहीद सानी की किताब मुन्यतुल मुरीद, ये मुन्यतुल मुरीद के अंदर लिखते हैं कि मुजतहिद के माखज़ कुरान व सुन्नत, इज्मा और क़ियास है। 100 नंबर 40 पर ये मुन्यतुल मुरीद किताब मेरे हाथों में शहीद सानी लिखते हैं। और यही हवाला इज्तिहाद व तकलीद खलील अहमद जाफरी, ये किताब खलील अहमद जाफरी ये भी यही लिखते हैं कि ये हमारे माखज़ हैं, कुरान व सुन्नत, इज्मा और क़ियास। और उसके अलावा उसूल फ़िक़्ह, ये उसूल फ़िक़्ह शहीद सानी की किताब है। ये शहीद सानी भी यही लिखते हैं कि हमारे ये माखज़ हैं, ये उसूल फ़िक़्ह, ये शहीद सानी के मुजतहिद, इज्तिहाद, इज्मा, क़ियास, ये इनका दारो मदार है। और ये इज्तिहाद व तकलीद सैयद आबिद हुसैन ज़ैदी ये भी लिखते हैं कि ये हमारे माखज़ 4 हैं, कुरान व सुन्नत, इज्मा और क़ियास। और राय, क़ियास, इज्तिहाद में ज़न, सिर्फ ज़न की पैरवी की जाती है। ये हवाला उसूल फ़िक़्ह आयतुल आज़मा आकाए मुंतज़री, ये किताब मेरे हाथों में मौजूद है। इसमें लिखते हैं 27वें सफ़े पर कि क़ियास, राय, इज्तिहाद में सिर्फ ज़न की पैरवी की जाती है। और यही हवाला बुनियतुल मुरीद में भी लिखा है कि यानी राय, क़ियास, इज्तिहाद में सिर्फ ज़न की पैरवी की जाती है। दोस्तों, ये मुजतहिदीन की किताबें, और मुजतहिदीन कहते हैं कि हम राय, क़ियास, इज्तिहाद के जरिए इस्तिंबात करते हैं और फिर फतवा देते हैं। ये हवाला अल्लामा तुनकाबनी, ये किताब क़ससुल अंबिया, क़ससुल उलमा, क़ससुल उलमा में अल्लामा तुनकाबनी लिखते हैं कि मुजतहिद इज्तिहाद के जरिए फतवा देता है, इज्तिहाद के जरिए मुजतहिद फतवा देता है, यानी इज्तिहाद के जरिए मुजतहिद बताता है। ये क़ससुल उलमा अल्लामा तुनकाबनी। यही हवाला मुन्यतुल मुरीद पर भी लिखा हुआ है। यही हवाला फलसफा इमामत मोहम्मद मेहदी आसफी ने भी लिखा है। यही हवाला इज्तिहाद व तकलीद खलील अहमद जाफरी ने भी लिखा है। यही हवाला उसूल फ़िक़्ह शहीद आयतुल्लाह मुर्तज़ा मुत्तहरी, यही हवाला उसूल फ़िक़्ह में शहीद मुर्तज़ा मुत्तहरी ने भी लिखा है। और खुमैनी साहब कहते हैं, खुमैनी कहते हैं कि उलमा इज्तिहाद करते हैं। खुमैनी साहब कहते हैं कि उलमा इज्तिहाद करते हैं। असुल व उसूल शिया, ये असुल व उसूल शिया, इस किताब में खुमैनी साहब कहते हैं कि मुजतहिद इज्तिहाद व ज़न करता है।
اور यही हवाला तुनका बड़ी ने कससुल उलमा में लिखा है। लफ्ज मुजतहद व लफ्ज इज्तिहाद व मुजतहद पहले सुन्नी था। दोस्तों ये बड़ी आम बात है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं कि ये मुजतहिदीन का नजरिया, ये इज्तिहाद, राय, क्यास, इस्तिंबात क्या है, तो ये मुजतहिदीन अपने किताबों में लिखते हैं कि लफ्ज इज्तिहाद, ये जो इज्तिहाद करके फतवा देते हैं, इज्तिहाद और मुजतहिद पहले लफ्ज ये सुन्नी था, बाद में शिया को इख्तियार किया गया, बाद में शिया ने ये इख्तियार कर लिया। ये इज्तिहाद व तकलीद, ये किताब इज्तिहाद व तकलीद पर सैयद आबिद हुसैन ज़ैदी लिखते हैं कि लफ्ज इज्तिहाद व मुजतहिद पहले सुन्नी था, बाद में शिया हुआ। अफसोस की बात है, यानी ये इज्तिहाद ये और ये मुजतहिद पहले सुन्नी थे, सुन्नियों से ये माना माखज लेकर शियों में दाखिल किए गए। और उसके बाद इसी किताब सिफा नंबर 36 पर ये साहब लिखते हैं कि इज्तिहाद व मुजतहिद ये लफ्ज रसूलुल्लाह के जमाना हिला से लेकर मुसलसल चंद सदियों तक सुन्नी था, यानी ये लफ्ज इज्तिहाद और मुजतहिद सुन्नी था, फिर बाद में शिया हो गया। अफसोस की बात। इज्तिहाद व तकलीद पैगाम वहदत इस्लामी, ये हवाला इस किताब इज्तिहाद व तकलीद पर एतराजात, ये हवाला इस सिफा नंबर, इस किताब के सिफा नंबर 40 पर लिखा है कि इज्तिहाद व मुजतहिद ये लफ्ज रसूलुल्लाह के जमाना रेल से लेकर मुसलसल चंद सदियों तक सुन्नी था। अफसोस की बात है कि यानी ये जो इज्तिहाद, राय, क्यास, इस्तिंबात, इखराजात है, इस्तखराजात हैं, सब सुन्नियों से लेकर ये मुजतहिदीन इस तरह फतवा देते हैं, राय, क्यास, इज्तिहाद, इस्तिंबात करके ये मुजतहिद फतवा देते हैं। और बड़ी ताज्जुब की बात है कि असल व उसूल शिया अल्लामा शेख आल काशिफुल गत्ता, ये असल व उसूल शिया, इसके सिफा नंबर 60 पर लिखते हैं कि मुजतहिद साहिब राय को कहते हैं। मुजतहिद यानी साहिब राय को कहते हैं, ये असल व उसूल शिया। मुजतहिद यानी साहिब राय। और उसके अलावा फलसफा इमामत, इसके मोहम्मद महदी आल लासिफी लिखते हैं सिफा नंबर 17 पर कि मुजतहिद मकाम फतवा पर क्यास और क्यास के जरिए पहचाना जाता है। इंदल मुजतहिदीन क्यास जायज है। ये फलसफा इमामत। दोस्तों ये थी चंद किताबें और ये मुजतहिदीन के अकायद जिसकी बिना पर मुजतहिद राय, क्यास, इज्तिहाद, इस्तिंबात करता है, यानी जो मुजतहिद फैसला देता है, जो फतवा देता है, उसका दारो मदार राय, क्यास, इज्तिहाद और ज़न पर होता है। और मुजतहिद कुरान और अहादीस के खिलाफ इसने अपना ये माखिज बनाया है जिसके बिना पर वो फतवा देता है। अब दोस्तों ये थी कुछ चंद मुजतहिदों की किताबें जिनका तारुफ मैंने आप लोगों से करवाया। अब देखते हैं कि कुरान मजीद में अहादीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आइमा मासूम अलैहिस्सलाम के नजदीक राय, क्यास, इज्तिहाद करना जायज है या नाजायज है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं राय के मुतल्लिक कि ये मुजतहिद जो राय कायम करता है और फैसला देता है, फतवा देता है, तो रसूलुल्लाह राय के मुतल्लिक क्या कहते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दीन में राय पर अमल करने पर जिहाद करेंगे,
क्योंकि दीन में राय की कोई गुंजाइश नहीं है, दीन में अमर नहीं सिर्फ अल्लाह की तरफ से होता है। तो रसूलुल्लाह ने फरमाया, वाज़ेह फैसला दे दिया कि यानी जो दीन में राय करेगा, उस पर अमल करेगा, उसके खिलाफ हम जिहाद करेंगे। और दीन अमर व नही का नाम सिर्फ अल्लाह की तरफ से। तो ये हवाला वसाइल शिया जिल्द 18 सिफा नंबर 55 पर और एहतिजाज तबरसी जिल्द नंबर 2 पर मौजूद है। तो ये दोस्तों, ये एहतिजाज तबरसी और वसाइल शिया, ये दोस्तों वसाइल शिया और ये एहतिजाज तबरसी, इन दोनों किताबों में रसूलुल्लाह का फरमान मौजूद है कि दीन में राय पर अमल करने पर जिहाद करेंगे, क्योंकि दीन में राय की कोई गुंजाइश नहीं है, दीन में अमर व नहीं सिर्फ अल्लाह की तरफ से। तो ये रसूलुल्लाह का फरमान आप लोगों के सामने कि रसूलुल्लाह ने राय की मजम्मत की। और उसके बाद रसूलुल्लाह का फरमान वसाइल जिल्द 18 सिफा नंबर 150 पर मौजूद है कि रसूलुल्लाह ने बताया, अपनी राय पर अमल करने वाला हलाक हो जाएगा। रसूलुल्लाह ने बताया कि यानी अपनी राय पर अमल करने वाला हलाक हो जाएगा। और इसी वसाइल शिया जिल्द 18 सिफा नंबर 50 पर रसूल अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया, दीन में कोई राय नहीं है। और किताब उयून अखबार रजा जिल्द नंबर अव्वल, ये किताब उयून अखबार रजा, इस पर अमीरुल मोमिनीन, इस पर इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने फरमाया कि हुक्म है कि अपनी रायों पर अमल करके हलाक व बर्बाद ना हो जाओ। यानी इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह का हुक्म है कि अपने रायों पर अमल करके हलाक व बर्बाद ना हो जाओ। यही हवाला किताब मानिल अखबार और वसाइल शिया, यही हवाला किताब वसाइल शिया पर, और यही हवाला मानिल अखबार शेख सुद्दूक रहमतुल्लाह अलैह की किताब। यानी रसूलुल्लाह इमाम जाफर साहब ने फरमाया कि अल्लाह का हुक्म मौजूद है कि रायों पर अमल करके हलाक व बर्बाद ना हो जाओ। उसके बाद इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम किताब रोज़ा काफी में फरमाते हैं, ये किताब रोज़ा काफी, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम किताब रोज़ा काफी में फरमाते हैं, अपने राय की पैरवी ना करो वरना गुमराह हो जाओगे। यानी इमाम फरमाते हैं कि अपनी राय की पैरवी ना करो वरना गुमराह हो जाओगे। और यही हवाला किताब वसाइल शिया जिल्द 18 पर भी मौजूद है। और उसके अलावा किताब उसूल काफी, ये किताब उसूल काफी सिफा नंबर 275 पर अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया कि मोमिन दीन को अल्लाह से लेता है ना कि अपनी राय से। अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया कि मोमिन दीन अल्लाह से लेता है ना कि अपनी राय से। और यही हवाला किताब मालिये शेख सुद्दूक रहमतुल्लाह अलैह, ये किताब मालिये शेख सुद्दूक रहमतुल्लाह अलैह, इस किताब के सिफा 350 पर अमीरुल मोमिन का यही फरमान मौजूद है कि मोमिन दीन को अल्लाह से लेता है ना कि अपनी राय से। और यही हवाला किताब वसाइल शिया जिल्द 18 पर और सिफा नंबर 50 पर मौजूद है। उसके अलावा किताब सवाबुल अमाल और अकाबुल अमाल, ये शेख सुद्दूक की किताब है। इस किताब पर इमाम मोहम्मद बाकर सलाम फरमाते हैं, फरमाया इमाम ने, कम तरीन शिरक ये है कि कोई शख्स
किसी राय को ईजाद करके और फिर उसी की बुनियाद पर मोहब्बत करे और दुश्मनी करे। इमाम ने फरमाया कि छोटी हुई राय, इमाम के नजदीक इमाम फरमाता है कि इंसान उसने शिरक कर लिया। और यही हवाला मल्ला याजुर फकी जिल्द नंबर 3 पर मौजूद है। यही हवाला ये मल्ला याजुर फकी, इमाम फरमाते हैं कम तरीन शिर्क ये कि कोई शख्स किसी राय को ईजाद करे और फिर उसकी बुनियाद पर मोहब्बत करे और दुश्मनी करे। और यही हवाला किताब वसाइल शिया जिल्द नंबर 11 पर मौजूद है। ये किताब वसाइल शिया जिल्द नंबर 11 सिफा नंबर 340 पर यही इमाम का फरमान मौजूद है। और उसके अलावा हमारे अमीरुल मोमिनीन, अमीर कायनात, अमीरुल मोमिनीन इमाम अलैहिस्सलाम किताब नहजुल बलागा में फरमाते हैं, इमाम फरमाते हैं जो कोई राय से काम लेगा वो तबाह बर्बाद हो जाएगा। यानी अमीरुल मोमिनीन कहते हैं कि जो अपनी राय पर अमल करेगा वो तबाह और बर्बाद हो जाएगा। उसके अलावा हमारी किताब तफसीर मुत्तकीन, ये किताब तफसीर मुत्तकीन इमदाद अली शाह काज़मी इसके सिफा नंबर 360 पर इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं, फरमाया इमाम ने जो अपनी राय से हिलाल को हराम करे और हराम को हिलाल करे वो ईमान से खारिज इस्लाम से खारिज हो गया और वो काफिर हो गया। यानी इमाम के इस हुक्म के मुताबिक, इमाम के फरमान के मुताबिक जो अपनी राय के मुताबिक फैसला दे इमाम के नजदीक वो काफिर है। उसके अलावा हमारी किताब तौहीद शेख सद्दूक रहमतुल्लाह अलैह, ये किताब तौहीद शेख सद्दूक रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब में फरमाते हैं कि किताब तौहीद शेख सद्दूक रहमतुल्लाह, इस पर रसूलुल्लाह का फरमान मौजूद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो शख्स मेरे दीन पर नहीं है जिसने मेरे दीन में क्यास को दाखिल किया। दोस्तों, पहले राय के मुतल्लिक रसूलुल्लाह आयमा मासूम अलैहिस्सलाम के अक़वाल मैंने आपके लोगों के खिदमत में पेश किए और किताबों के हवाले थे। अब क्यास के मुतल्लिक रसूलुल्लाह और आयमा मासूमीन के क्या अक़वाल है, वो आयमा मासूम अलैहिस्सलाम क्यास के मुतल्लिक क्या हुक्म सादर फरमाते हैं। तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यास के मुतल्लिक फरमाते हैं, ये किताब तौहीद शेख सद्दूक रहमतुल्लाह अलैह, रसूलुल्लाह ने फरमाया वो शख्स मेरे दीन पर नहीं है जिसने मेरे दीन में क्यास को दाखिल किया। तौबा अस्तगफिरुल्लाह, दीन में क्यास को दाखिल करना रसूलुल्लाह का फरमान है कि वो दीन से खारिज है। और यही हवाला किताब अमाली शेख सद्दूक रहमतुल्लाह अलैह, ये सिफा नंबर 12 पर यही रसूलुल्लाह का फरमान मौजूद है। और उसके अलावा किताब उसूल काफी, ये किताब उसूल काफी पर अमीरुल मोमिनीन, ये उसूल काफी अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं क्यास मजहब से अलग है। यानी अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं क्यास मजहब से अलग है। ये हवाला हमारी किताब उसूल काफी, ये किताब उसूल काफी जिल्द अव्वल सिफा नंबर 116 पर ये अमीरुल मोमिनीन का फरमान मौजूद है कि अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं क्यास मजहब से अलग है। और उसके अलावा हमारे छठे इमाम जाफर और सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं इसी किताब उसूल काफी जिल्द नंबर अव्वल में सिफा नंबर 117 पर फरमाते हैं, इमाम ने फरमाया दीन क्या साथ से हासिल नहीं किया जाता। यानी दीन क्या साथ से हासिल नहीं किया जाता। ये हमारे छठे इमाम जाफर और सादिक सलाम का ये किताब उसूल काफी में मौजूद है। और यही हवाला हमारी किताब वसाइल शिया, हमारी किताब वसाइल शिया जिल्द 18, ये किताब वसाइल शिया जिल्द 18 मेरे हाथों में है। इसके सिफा नंबर 50 पर यही इमाम जाफर सादिक सलाम का फरमान मौजूद है कि क्या साथ से दीन हासिल नहीं किया जा सकता।
اور اس کے علاوہ کتاب عیون اخبار رضا، یہ کتاب بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان قیاس کے متعلق یہ کتاب اخبار عیون رضا، یہ جلد نمبر اول پر رسول اللہ کا فرمان موجود ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا وہ شخص مجھ پر ایمان نہیں لایا اور وہ میرے دین پر نہیں ہے جو میرے دین میں قیاس پر عمل کرتا ہے۔ یہ کتاب عیون اخبار رضا جلد اول صفحہ نمبر 150 پر، اور یہی حوالہ کتاب وسائل شیعہ جلد نمبر 18 اور صفحہ نمبر 7 پر یہ رسول اللہ کا فرمان موجود ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا وہ شخص مجھ پر ایمان نہیں لایا اور وہ میرے دین پر نہیں ہے جو میرے دین میں قیاس پر عمل کرتا ہے۔ اس کے علاوہ کتاب وسائل شیعہ جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 52 پر امام جعفر صادق صاحب فرماتے ہیں، امام جعفر صادق نے فرمایا اللہ لعنت کرے دین میں قیاس کرنے والوں پر، کیونکہ انہوں نے کتاب اللہ اور سنت مصطفیٰ کو بدل دیا ہے۔ یہ کتاب وسائل شیعہ جلد نمبر 18 صفحہ 52، اور یہی حوالہ کتاب امالی مفید شیخ صدوق رحمت اللہ علیہ امالی مفید، اور یہی حوالہ کتاب امالی مفید پر بھی موجود ہے۔ امالی مفید صفحہ نمبر 90 پر امالی مفید، اور اس کے علاوہ یہ کتاب امالی مفید اس کے صفحہ نمبر 95 پر امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان موجود ہے کہ آپ نے فرمایا اللہ لعنت کرے دین میں قیاس کرنے والوں پر، کیونکہ انہوں نے کتاب اللہ اور سنت مصطفیٰ کو بدل دیا ہے۔ اور یہی حوالہ کتاب وسائل شیعہ جلد نمبر 18 اور صفحہ نمبر 52 پر بھی موجود ہے۔ اور اس کے علاوہ ہمارے امام جعفر و صادق علیہ السلام نے کتاب احتجاج تبرسی، یہ کتاب احتجاج تبرسی جلد نمبر 3 پر امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں سب سے پہلا قیاس کرنے والا شیطان ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں سب سے پہلا قیاس کرنے والا شیطان ہے۔ یہ کتاب احتجاج تبرسی جلد نمبر 3 اور صفحہ 156 پر یہ حوالہ موجود ہے۔ اور اس کے علاوہ یہی حوالہ کتاب اصول کافی جلد نمبر اول اور صفحہ نمبر 122 پر یہی حوالہ امام کا موجود ہے کہ سب سے پہلے قیاس کرنے والا شیطان ہے۔ اور یہی حوالہ کتاب بہار الانوار جلد نمبر 8 پر موجود ہے۔ کتاب بہار الانوار، یہ کتاب بہار الانوار جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 240 پر امام فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے قیاس کرنے والا شیطان ہے۔ اور اس کے علاوہ یہی حوالہ کتاب وسائل شیعہ جلد نمبر 18، یہ کتاب وسائل شیعہ جلد نمبر 18 پر بھی یہی حوالہ موجود ہے۔ صفحہ نمبر 45 پر امام فرماتے ہیں سب سے پہلے قیاس کرنے والا ابلیس ہے، یعنی شیطان۔ اس کے بعد ہمارے امام جعفر و صادق علیہ السلام اصول کافی جلد نمبر اول، یہ اصول کافی جلد نمبر اول صفحہ نمبر 117 پر فرماتے ہیں دین قیاسات سے حاصل نہیں ہوتا، اور یہی حوالہ کتاب احتجاج تبرسی پر بھی موجود ہے۔ اور اس کے علاوہ ہمارے امام جعفر صادق، چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کتاب علل شرائع پر، یہ کتاب علل شرائع اس کے صفحہ نمبر 109 پر امام جعفر صادق صاحب فرماتے ہیں جو کوئی اپنے دین میں قیاس کرے گا وہ اللہ کے
दुश्मन इबलीस के साथ जहन्नम के सबसे निचले तबके में होगा। यानी जो दीन में क्या साथ करेगा वो शैतान के साथ जहन्नम के निचले तबके में होगा। और उसके बाद किताब बिहार अनवार जिल्द नंबर 8, ये किताब बिहार अनवार जिल्द नंबर 8 सफ़ा नंबर 55 पर इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं, जिस शख्स ने क्यास पर अमल किया वो खुद भी हलाक हुआ और उसने दूसरों को भी हलाक कर दिया। ये किताब बिहार अनवार। और उसके बाद किताब तौहीद शेख सद्दूक रहमतुल्लाह अलैह, ये किताब तौहीद शेख सद्दूक रहमतुल्लाह अलैह, इसके सफ़ा नंबर 60 पर इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इमाम ने फरमाया, जिस शख्स ने अपने दीन को क्यास के बुनियाद पर कायम किया उसने दुनिया को गर्क कर दिया। ये किताब तौहीद शेख सद्दूक रहमतुल्लाह अलैह। तो दोस्तों ये राय के मुतल्लिक क्यास के मुतल्लिक मैंने आपको बताया। और उसके बाद ये जो मुज्तहिदीन इज्तिहाद करते हैं तो उसके मुतल्लिक हमारे आइमा मासूम अलैहिस्सलाम ने क्या अहकामात बताए हैं। तो हमारे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने किताब वसाइल शिया जिल्द नंबर 18 सफ़ा 50 पर इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं, इज्तिहाद पर अमल करने वाले हलाक हो गए। यानी इमाम ने बताया कि जिसने इज्तिहाद किया वो हलाक हो गया। उसके बाद हमारे छठे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम किताब रोज़ा काफी, ये किताब रोज़ा काफी हमारे इमाम छठे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम किताब रोज़ा काफी में फरमाते हैं कि इज्तिहाद करने से बेहतर है दोज़ख में, इज्तिहाद करने वाला दोज़ख में होगा। यानी इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं किताब रोज़ातुल काफी जिल्द नंबर अव्वल सफ़ा नंबर 16 पर इमाम फरमाते हैं इज्तिहाद करने वाला दोज़ख में होगा। तो दोस्तों ये थी कुछ मुज्तहिदीन के मुतल्लिक रसूलुल्लाह आइमा मासूमीन ने जो वो इज्तिहाद करते हैं। अब इज्तिहाद का हक किसको है और इज्तिहाद कौन करे? तो इज्तिहाद रसूलुल्लाह और आइमा हुदा का हक है। रसूलुल्लाह ने फरमाया ये आइमा हुदा हैं, उन्होंने इज्तिहाद की सिफातें। किताब अकमालुद्दीन शेख सद्दूक रहमतुल्लाह अलैह जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 345 पर रसूलुल्लाह का फरमान मौजूद है। अकमालुद्दीन, किताब अकमालुद्दीन पर रसूलुल्लाह का ये फरमान मौजूद है। ये किताब अकमालुद्दीन, रसूलुल्लाह ने फरमाया ये आइमा हुदा हैं, इन्हीं में इज्तिहाद की सिफात हैं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किताब रोज़ातुल काफी जिल्द नंबर अव्वल सफ़ा 16 पर रसूलुल्लाह फरमाते हैं इज्तिहाद से बेहतर है हमारे पैरवी। यानी रसूलुल्लाह ने बताया कि ये जो इज्तिहाद करते हैं उससे बेहतर है कि वो हमारी पैरवी करें। और ये जो मुज्तहिदीन जन करते हैं, मैं आप लोगों की खिदमत में अर्ज करूं और वजाहत कर दूं कि जन क्या है। तो मेरे दोस्तों राय, क्यास, इज्तिहाद ये सब अकल की किस्में हैं, ये सब बना राय की किस्में हैं। नाम सब अलग हैं और उनका काम यही है बना अपने ख्यालात से कोई फैसला करना, यानी अपनी मर्जी से कोई फैसला करना, यानी अपनी राय से कोई फैसला करना, जन यानी गुमान। तो सबसे पहले कुरान मजीद में अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया है कि जन की मजम्मत की है। वो किस तरह?
पारा नंबर 26 सूरह हुजरात आयत नंबर 12 पर अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए वो लोगो जो ईमान लाए, तुम बहुत जन गुमान करते हो, जन गुमान करने से परहेज करो, यकीनन बाद जन गुमान गुनाह से बेहतर, गुमान से जन गुनाह है। तो यानी जो जन कुरान के नजदीक यानी वो गुनाह है। ये सूरह हुजरात आयत नंबर 12 पे। और सूरह नजम आयत नंबर 28 पर वो उन्हें पैरवी करते, वो नहीं पैरवी करते मगर जन गुमान की, और यकीन जन गुमान हक के मुकाबले में कुछ किफायत नहीं करता, यानी हक के मुकाबले में जन कुछ भी नहीं है। और पारा नंबर 8 सूरह इनाम आयत नंबर 116 पर कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज्जत का फरमान है, और कुरान उन लोगों में से जो जमीन में हैं, अक्सर का कहना मान लोगे तो वो तुमको अल्लाह ताला के रास्ते से भटका देंगे, वो तो सिर्फ जन यानी गुमान की पैरवी करते हैं। तो कुरान मजीद में अल्लाह तबारक ताला का भी ये हुक्म हमारे सामने आ गया कि जन की पैरवी करने वाला हलाक हो जाता है, गुमराह हो जाता है। अब ये कुछ चंद आयत थी कुरान में जो अल्लाह तबारक ताला ने जन के मुतल्लिक हमें आगाही दी। और उसके बाद उसूल काफी जिल्द नंबर 2 पर हमारे इमाम मोहम्मद बाकर सलाम का फरमान मौजूद है। ये उसूल काफी पर इसके सिफा नंबर 136 पर इमाम मोहम्मद बाकर फरमाते हैं, जो राय और जन को दुरुस्त समझे तो उसका हुक्म शैतानी हुक्म होगा। यानी इमाम ने ये बता दिया कि जो जन को, राय और जन को दुरुस्त समझे उसका हुक्म शैतानी होगा। और उसके बाद किताब उसूल काफी जिल्द नंबर अव्वल पर अमीरुल मोमिनीन सिफा 116 पर फरमाते हैं, पैरवी जन और क्यास मजहब से बिल्कुल अलग है। और उसके बाद हमारे इमाम जाफर सादिक सलाम उसूल काफी जिल्द नंबर 3 पर फरमाते हैं, सिफा नंबर 375 पे इमाम जाफर सादिक सलाम फरमाते हैं, राय जन क्यास दीन में नहीं है। और यही हवाला उसूल काफी जिल्द नंबर 4 पर भी मौजूद है। और उसके बाद हमारे इमाम अव्वल अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम किताब नहजुल बलागा, ये किताब नहजुल बलागा अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं, जन व गुमान तो उसके मुताबिक फैसला न करो, यानी जन और गुमान के मुताबिक फैसला न करो। अमीरुल मोमिनीन ने बताया कि नहजुल बलागा में सिफा 870 पर के जन व गुमान तो उसके मुताबिक फैसला या फतवा ना दो। और उसके बाद अमीरुल मोमिनीन उसूल काफी जिल्द अव्वल, ये उसूल काफी जिल्द अव्वल सिफा नंबर 95 पे फरमाते हैं, अपने नफ्सों को इजाजत ना दो कि वो पैरवी जन करें, यानी जन से आयमा ने हमें रोका है। और उसके बाद किताब एहतिजाज तबरसी, ये किताब एहतिजाज तबरसी पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हम जन नहीं करते। ये किताब एहतिजाज तबरसी और यही हवाला किताब वसाइल शिया जिल्द 18 पर मौजूद है। हमारे मजलूम करबला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाते, हम जन नहीं करते। और उसके बाद इमाम मोहम्मद बाकर, हमारे पांचवें इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, किताब मल्ला यजुल फकी में और किताब उसूल काफी में और किताब वसाइल शिया में और किताब वसाइल शिया, ये किताब उसूल काफी और मल्ला यजुल फकी में फरमाया, इमाम ने फरमाया, किसी ने पूछा कि कम से कम कौन सी बात है जिससे इंसान मुर्शिद बन जाता है। इमाम ने फरमाया, जिसने कोई नई राय बतौर जन व क्यास कायम करके किसी से मोहब्बत की और या बुग़्ज़ रखा। इमाम ने फरमाया, क्यास व जन को कायम करके किसी से मोहब्बत या बुग़्ज़ रखना वो
मुशरिक बन जाता है, उससे यानी मुशरिक बन जाता है। और उसके बाद हमारे छठे इमाम जाफर और सादिक अलैहिस्सलाम किताब रूहुल हयात, अल्लामा मोहम्मद बाकर मजलिसी अपनी किताब रूहुल हयात में इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने नकल करते हैं। इसके सिफा नंबर 240 पर इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया सबसे सबसे ज्यादा मुफीद वो इल्म सबसे ज्यादा मुफीद वो इल्म है जो बायस से खुशनूदी खुदावंद आलम हो, उसी पर निजात आखिरत का इन्हिसार यानी दारोमदार है। वो इल्म कुरान व हदीस है जो रसूलुल्लाह और आयमा के जरिए से हम तक पहुंचा है, और उस इल्म को हासिल करना भी जरूरी है। ये रूल हयात यानी इमाम के नजदीक सिर्फ कुरान और हदीस का इल्म हासिल करना है और कुछ भी नहीं। और उसके बाद हमारे इमाम जाफर सादिक सलाम किताब उसूल काफी जिल्द नंबर 3, ये उसूल काफी जिल्द नंबर 3 पर इमाम जाफर सादिक सलाम इसके सिफा नंबर 370 पर फरमाते हैं, इमाम ने फरमाया लोगों को हमारी मार्फत का हुक्म दिया गया है और हमारी बात को मानने का भी। अगर वो लोग रोजा रखें, नमाज पढ़ें और ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही दें और अपने दिलों में ये इरादा करें कि वो हमसे रुजू ना करेंगे तो इससे मुशरिक बन जाएंगे। यानी इमाम का ये फरमान किताब उसूल काफी और किताब वसाइल शिया जिल्द 18 पर है कि इमाम ने फरमाया जो हमसे रुजू ना करेगा वो हलाक और बर्बाद हो जाएगा। यानी इमाम का हुक्म हमारे सामने मौजूद है कि इमाम का हुक्म ये है कि फकत आयमा की पैरवी कीजिए। ये वसाइल शिया जिल्द नंबर 18 पर रसूल अमीरुल मोमिनीन का फरमान है और उसूल काफी जिल्द नंबर 3, ये दोनों किताबें आपके सामने मैंने ये खोल खोल कर बयान की और पढ़ के सुनाई कि आयमा ने किस तरह राय, क्यास, इज्तिहाद, इस्तिंबात को रद्द कर दिया। कुरान और अहादीस के जरिए मैंने आप लोगों के सामने ये कुरान और अहादीस की किताबें, रसूलुल्लाह के अहकामात और आयमा के फरामीन मैंने आप लोगों को कुरान और अहादीस से साबित कर दिया, दिखा दिया कि फकत आयमा की पैरवी करनी है। और ये आखिरी जो फरमान मैंने आपके खिदमत में पेश किया उसूल काफी जिल्द नंबर 3 और इसके सिफा नंबर 370 पर और वसाइल शिया जिल्द नंबर 18 और सिफा नंबर 55 का इमाम जाफर सादिक ने फरमाया लोगों को हमारी मार्फत का हुक्म दिया गया है और वो हमारी बात को मानते हैं। अगर वो लोग रोजा रखने वाले, नमाज पढ़ने वाले और ला इलाहा की गवाही देने वाले और अपने दिलों में ये इरादा रखें कि हमसे रुजू ना करेंगे तो इससे मुशरिक बन जाते हैं। तो इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का फरमान ये आपके खिदमत में मैंने बयान कर दिया और कुरान और हदीस के जरिए ये किताबें खोल खोल कर मैंने आप लोगों को दिखाई कि कुरान में और रसूलुल्लाह के फरमान में और आयमा मासूम अलैहिस्सलाम के अहकामात आपके सामने हैं कि ये जो राय, क्यास, इज्तिहाद, इस्तिंबात ये मुज्तहिदीन का अपना फतूर है। वो अपने अहकामात लोगों को इस तरह बताते हैं अपनी राय के जरिए और कुरान व हदीस से मुज्तहिद का कोई ताल्लुक नहीं है। तो लोगों तो जो ये बातें थी आप लोगों की खिदमत में मैंने अर्ज की कि जो लोग तकलीद करते हैं वो खुदारा अपनी तकलीद से तौबा तायब कर लें और आयमा की तरफ रुजू कर लें जिससे हमारी जिंदगी दुनिया और आखिरत दोनों संवर जाएंगी। मुजतहिद फतवा देने के लिए जब राय, क्यास, इज्तिहाद जन करता है तो इस्तिंबात करता है। इस्तिंबात क्या है कि जो मुजतहिदीन ने अपने किताबों में उसकी मीनिंग व माना लिखी है। इस्तिंबात यानी कोशिश करना, वो भी इस्तिंबात यानी इज्तिहाद का दूसरा नाम है जो मुजतहिदीन ने लिखा है और उसकी मीनिंग व मफहूम ये है यानी जमीन से पानी खोदना, जमीन से पानी निकालना। यानी मुजतहिद में जब फतवा देने का मकाम पे पहुंचने के लिए इस्तिंबात जरूरी है, जबकि
یہ جو ان کی کتاب میں آپ کو دکھا رہا ہوں، اصول فقہ، استاد شہید آیت اللہ مرتضیٰ مطہری، یہ بھی اسی کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ استنباط یعنی زمین سے پانی نکالنا. یہ اصول فقہ شہید ثانی اس کتاب کے صفحہ نمبر 20 پر لکھتے ہیں، آج ہمارے یہاں فقیہ اور مجتہد دونوں ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں. لفظ اجتہاد کا مادہ جہد جیم پر پیش ہے، جس کا مطلب ہے انتھک کوشش. فقیہ کو مجتہد اس لیے کہتے ہیں کہ اسے مقام اسے احکام و قوانین کے استفادہ میں بھرپور انتھک کوشش کرنی چاہیے. لفظ استنباط بھی تقریباً اجتہاد و فقہ کا معنی دیتا ہے. لفظ مادہ سے مشتق ہوا ہے، جس کا معنی زمین کے نیچے سے پانی نکالنا ہے. یہ استاد شہید آیت اللہ مرتضیٰ اصول فقہ میں لکھتے ہیں. اور اس کے علاوہ آیت اللہ عظمیٰ آقائے منتظری نام امام علی میں سارے یہی لکھتے ہیں کہ یعنی مجتہد استنباط کرتا ہے. اور تقلید اور اجتہاد علامہ سعید ابن حسن نجوی یہ بھی لکھتے ہیں کہ مجتہد استنباط کرتا ہے. اور اجتہاد و تقلید اور اخبار کا علمی جائزہ خلیل احمد جعفری قمی یہ بھی اپنی اسی کتاب کے اندر لکھتا ہے کہ مجتہد استنباط کرتا ہے. اور اصول و اصول شیعہ علامہ آل کاشف الغطا اسی کتاب کے اندر لکھتا ہے کہ مجتہد فتویٰ دینے کے لیے استنباط کرتا ہے اور استنباط کرنا ضروری ہے. اور اس کے بعد منیت المرید شہید ثانی، یہ منیت المرید شہید ثانی بھی اپنی اسی کتاب کے اندر لکھتا ہے کہ مجتہد استنباط کرتا ہے. اور اس کے علاوہ فلسفہ امامت، یہ فلسفہ امامت محمد مہدی العصفی یہ بھی اسی کتاب کے اندر لکھتا ہے کہ مجتہد استنباط کرتا ہے. تو دوستو، میں نے آپ کے آگے یہ مجتہدین کی چند کتابیں پیش کی جس سے مجتہدین نے اپنے مقلد کو فتویٰ دینے کے لیے وہ استنباط کرتے ہیں. جبکہ استنباط رسول اللہ اور ائمہ معصومین اعظم کا منصب ہے. استنباط کرنا مجتہد کا کام نہیں ہے. استنباط کرنا رسول اللہ کے بعد ائمہ کا کام ہے. تو ہمارے پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا اولو الامر اور ہادیوں کا کام ہے استنباط کرنا. پھر فرمایا بس جس نے اولو الامر اور اہل استنباط کو انبیاء و مرسلین کے گھروں سے نکال کر اور لوگوں کو ہادی قرار دیا تو اس نے امر خداوند کی مخالفت کی، وہ خود بھی گمراہ ہوا اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا. یہ حوالہ ہماری کتاب روزہ کافی جلد نمبر اول، یہ کتاب روزہ کافی جلد نمبر اول اور صفحہ نمبر 136 پر امام فرماتے ہیں کہ استنباط اولو الامر کا کام ہے، استنباط کرنا ہمارا کام ہے. اور یہی حوالہ ہماری کتاب اصول کافی جلد نمبر 2 پر بھی موجود ہے. یہ کتاب اصول کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 216 پر یہی امام کا فرمان موجود ہے کہ استنباط اولو الامر و ہادیوں کا کام ہے. اور یہی حوالہ ہماری کتاب احتجاج تبرسی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 59 پر یہی حوالہ موجود ہے کہ امام محمد باقر فرماتے ہیں کہ اہل استنباط
उल अमर है, यानी इस्तेमाल करने वाले हम हैं। और यही हवाला हमारी किताब वसाइल शिया जिल्द नंबर 18, ये किताब वसाइल शिया जिल्द नंबर 18 सफ़ा नंबर 45 पर इमाम मोहम्मद बाकर फरमाते हैं कि एहले इस्तेमाल हम हैं। इमाम मोहम्मद बाकर का फरमाते हैं उलुल अमर और हादियों का काम इस्तेमाल एक काम है। फिर फरमाया बस जिसने फजल व कमाल से तमस्सुक किया वो उनके इल्म तक पहुंच गया, उनकी मदद से निजात पा गया। और जिसने उलुल अमर और इस्तेमाल को अंबिया व मुरसलीन के घरों से निकाल कर और लोगों को हादी करार दिया तो उसने अमर खुदाबंदी की मुखालफत की और जाहिलों को उलुल अमर करार दिया। और जो ऐसा करते हैं तो खुदावंद रसूल पर झूठ बोलते हैं, वो पैगंबर के हकीकी वसिया से रूह गिरदानी करते हैं, वो अल्लाह के फजल व करम को वहाँ नहीं रखते जहाँ अल्लाह ताला ने रखा है, और इसलिए वो खुद भी गुमराह हुए और दूसरों को भी गुमराह किया। तो मेरे दोस्तों, ये इस्तेमाल जो मुज्तहिदीन करते हैं, ये मुज्तहिदों का काम नहीं है, ये मुज्तहिदीन का काम नहीं है। ये इस्तेमाल रसूलुल्लाह के बाद आइमा मासूमीन अलैहिस्सलाम का काम है, जो इस्तेमाल के जरिए हम लोगों को ये एहकामात बताएंगे। और उसके बाद हमारे इमाम जाफर और सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम्हारे लिए आसार रसूल, उसकी सुन्नत और आसार आइमा व रहनुमा है जो रसूलुल्लाह के अहल बैत हैं। ये हवाला रोज़ा काफी, ये किताब रोज़ा काफी जिल्द नंबर अव्वल और सफ़ा नंबर 16 पर इमाम जाफर सादिक का फरमान मौजूद है कि तुम लोग आसार रसूलुल्लाह की सुन्नत और आसार आइमा व रहनुमा हैं जो रसूलुल्लाह के अहल बैत हैं। यानी हमें रसूलुल्लाह और आइमा मासूम सलाम के आसार तलाश करने हैं। और यही हवाला हमारी किताब वसाइल शिया जिल्द नंबर 18 और सफ़ा नंबर 45 पर यही हवाला मौजूद है। और उसके अलावा यही हवाला हमारी किताब इस्बात इमामत अल्लामा मोहम्मद बाकर मजलिसी अपनी इसी किताब के अंदर इस्बात इमामत यानी हयातुल कुलूब का पहला जिल्द सफ़ा 60 पर भी यही हवाला मौजूद है। और उसके अलावा हमारे इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम का फरमान है हमारी किताब अकमालुद्दीन शेख सद्दूक रहमतुल्लाह अलैह। इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जो कुछ इस घर से ना निकले वो बातिल है। इमाम फरमाते हैं जो कुछ इस घर से ना निकले वो बातिल है। ये अकमालुद्दीन शेख सद्दूक रहमतुल्लाह अलैह की किताब है। और उसके बाद यही हवाला हमारी किताब उसूल काफी जिल्द नंबर 2 पर भी मौजूद है। ये उसूल काफी जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 412 पर इमाम का ये फरमान मौजूद है। और यही हवाला हमारी किताब मल्ला याजुल फकीर, यही हवाला किताब मल्ला याजुल फकीर में भी मौजूद है। और उसके अलावा यही हवाला हमारी किताब अमालिए मुफीद रहमतुल्लाह अलैह में भी मौजूद है। इमाम फरमाते हैं कि जो कुछ इस घर से ना निकले वो बातिल है। तो मेरे अजीज दोस्तों, मैंने आप लोगों के खिदमत में मुज्तहिदीन की किताबें जहाँ से वो
رائے قیاس اجتہاد زن کر کے استنباط کر کے فتوائے دیتے ہیں. یہ سارے ان کے جو مصادر ہیں، یہ سارے جو جس طرح یہ فتویٰ دیتے ہیں مصادر ہیں، سب رسول اللہ ائمہ معصوم علیہ السلام کے خلاف ہیں. کیوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و ائمہ معصوم علیہ السلام نے رائے قیاس اجتہاد ظن اور استنباط سے منع کیا ہے. تو پیارے دوستو، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ معصوم علیہ السلام نے رائے قیاس اجتہاد استنباط سے روکا ہے، تو پھر یہ مجتہدین کیوں اپنی ذاتی رائے کر کے اجتہاد کر کے ظن کر کے استنباط کر کے کیوں لوگوں کو فتویٰ دیتے ہیں اور کیوں رسول اللہ اور ائمہ معصوم علیہ السلام کے خلاف فتویٰ دیتے ہیں؟ تو میرے پیارے دوستو، انشاءاللہ یہ آج کا موضوع جو رائے قیاس اجتہاد استنباط جو مجتہدین کے ماخذ تھے، قرآن اور احادیث کے ذریعے میں نے آپ لوگوں کو ثابت کر کے دیا کہ ان کا یہ ذریعہ جو ہے، جس طرح یہ فتویٰ دیتے ہیں، یہ سب غلط ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم کسی دوسرے موضوع کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں پیش ہوں گا. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.